Welcome back to my YouTube channel, Biology Exam Preparation with नीलेश आनंदवानी। आई एम अ प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो एज वी नो दैट इन आई शो यू इन अ ब्लैंक पेज। मैं अभी ग्राफिक टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं ग्राफिक टैबलेट का यूज करके आपको समझा रहा हूँ। So let's start. First of all, before explaining you photolysis of water, I would like to tell you photosynthesis की definition क्या थी हमारी। तो क्या होता है photosynthesis? Photosynthesis is nothing but a biochemical process in which 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water both act as a raw material in presence of sunlight as catalyst. They get converted into products such as C6H12O6 as a product. This product is considered as a glucose, ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारी होती है डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। तो आप फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में क्या देख रहे हो, दैट फोटोसिंथेसिस इज अ photochemical reaction or biochemical reaction in which carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water act as a raw material in presence of sunlight as a catalyst. They get converted into glucose as a product and byproduct is a ऑक्सीजन। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में फाइनली प्रोडक्ट तो ग्लूकोज आ गया, लेकिन वाटर का हमें ब्रेकडाउन क्यों करना पड़ता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम क्यों करते हैं, तो चलिए हम वो देखते हैं। सो एज यू कैन सी, व्हाट डज इट मीन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो फोटो मीन्स सनलाइट and lysis means breakdown, or you can say splitting. So splitting of a water in presence of sunlight or breakdown of water in presence of sunlight, it is called photolysis of water. यहाँ पे देखिए, photolysis of water means breakdown of water during photosynthesis or splitting of water during photosynthesis, it is called photolysis of water. अब हम ये देखते हैं कि photolysis of water कहाँ पे होता है और क्यों होता है। सो इसे जानने के लिए आपको फोटो सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो क्या होता है फोटो सिस्टम, लेट्स स्टार्ट, आई विल टीच यू। सी, एज आई टोल्ड यू, फोटो सिस्टम, व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम इज आल्सो नोन एज पिगमेंट सिस्टम। मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं। क्या था, accessory pigments such as a chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, chlorophyll molecule E, and chlorophyll molecule finally A. This is A, which is having 680 nanometer. So it is P as second, means photosystem second or pigment system second. Now this is chlorophyll molecule B, chlorophyll molecule C, chlorophyll molecule D, chlorophyll molecule A, and this large one is chlorophyll molecule A. So this is having 700 nanometer, so it must be PS1. तो हमने ये देखा था। See, this is what chlorophyll B, this one is C, this one is D, and this one is E. This is again B, this one is C, this one is D, and this one is E. So ये सब क्या है, chlorophyll molecule B, C, D, E are accessory pigment and chlorophyll molecule A is essential pigment. Accessory pigment plus essential pigment को हमने कहा था फोटो सिस्टम, या तो हमने कहा था पिगमेंट सिस्टम। अब हम बेसिकली ये देखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है और क्यों होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन एंड ओके, रेडी। So now see, basically photolysis of water कहाँ होता है, कैसे होता है। As you can see, this is light coming from the sun. Okay, light energy is absorbed by the chlorophyll molecule. As you can see,
दिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करें तो यहाँ पे था, देखो फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो रॉ मटेरियल है, और सनलाइट, सनलाइट बेसिकली कौन एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट लीफ एब्जॉर्ब करते हैं, और लीफ के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लीफ के अंदर अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है तो आप ये बात क्लियरली समझ सकते हो। सो लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनसाइड द लीफ। और लीफ में सनलाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो ये वाली जो फेज है उसे हम कहेंगे लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बनते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होता है, मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सी, सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल BCDE, ये वाले क्या करते हैं? ये लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, और लाइट एब्सॉर्ब करके ये क्या बनाते हैं? ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन B से A की तरफ, C से A की तरफ, D से A की तरफ और E से A की तरफ ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तब क्या होता है? तब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, मतलब स्प्लिटिंग होता है। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिवाइड होता है? तो ये देखिए, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल याद रखिए स्प्लिटिंग जब होता है ना वो होता है PS सेकंड। कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS1 में नहीं होता है। कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये याद रखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर PS1 में होता है। अगर आपको कोई ऐसा पढ़ा रहा है तो वो गलत है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कभी भी PS सेकंड में ही होता है। ठीक है, PS सेकंड मतलब जिसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर है वो वाला। तो ये है वाटर। वाटर अब किस में ब्रेक डाउन होगा? तो वाटर देखो एक मॉलिक्यूल होगा, वो होगा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है? मूव टू नेक्स्ट स्टेज। क्यों? ये देखिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं NADP। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। N मीन्स निकोटिनामाइड, A मीन्स एडिनिन, D मीन्स डाइन्यूक्लियोटाइड, P मीन्स फॉस्फेट। सो NADP which is a hydrogen acceptor molecule. This NADP as a hydrogen acceptor molecule. After accepting this NADP as a hydrogen acceptor molecule, after accepting hydrogen molecule, this turn into NADPH। मतलब क्या हो गया अभी इसका फुल फॉर्म? NADP का फुल फॉर्म था निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और H मतलब हाइड्रोजनेस। तो ये हाइड्रोजन का जो वाटर में से हाइड्रोजन आता है उसका यूज कहाँ हो जाता है? NADPH2 बनाने में। और ये जो ऑक्सीजन है वो फिर से एयर में चला जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन बेसिकली हम एब्जॉर्ब करते हैं, और हम क्या करते हैं उसका? हम बेसिकली ब्रीदिंग में यूज करते हैं, और हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए इसका जो पहला प्रोडक्ट आता है वो मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट आता है वो होता है NADPH, और दूसरा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है ATP। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ है? मूव टू नेक्स्ट स्टेज। अभी ATP कहाँ मूव होगा? तो हमें पता है ATP से बाद में क्या होगा? ATP से बाद में ग्लूकोज बनेगा। कब? जब हम प्रोसेस करेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्प्लिटिंग। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे भी वही चीजें बताई हुई है। सी, लाइट इज बेसिकली एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट इट टर्न इनटू केमिकल एनर्जी। हाउ? सो आई विल टेल यू। सी, वी आर ब्रेकिंग डाउन दिस water molecule, okay, and from that we are getting two things. One is oxygen and second one is hydrogen. Oxygen goes into air, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, and then hydrogen combines with NADP, it turn into NADPH। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट आ गया हमारा NADPH, और दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ATP। अब सवाल ये उठता है हमारे सामने, वेयर ATP and NADPH2
are used. So ATP and NADPH2 are used for the dark reaction. अब आप ये भी सोच रहे हो कि ATP कहाँ से बनता है, तो ये देखिए ADP stand for adenosine diphosphate molecule. It combined with PI. PI stand for inorganic phosphate. After combining with one phosphate by ADP, ADP is already two. ADP already has two phosphate. By combining with one phosphate, it turn into ATP as a adenosine triphosphate molecule. So what are the basically the product of light reaction? ठीक है, आप बता सकते हो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? सो बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, product of light reactions are two things. One is ATP and second one is NADPH. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो अभी पढ़ाया है आपको, ये वाली पूरी क्लिप की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, मैं आपको उसकी क्लिप भेज दूंगा। ये मेरा नंबर है 9028179848। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको ये वाली क्लिप पूरी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।